Students, now we are discussing about refraction at a spherical surface, and in this before studying lens को study करने से पहले, क्योंकि lens हम generally consider करेंगे spherical या concave, जिसमें दो parts होंगे, एक first spherical surface and this is second spherical surface. So we are just only considering this first spherical surface, all right here. So when we have यहाँ पे मैंने चीज लिखा हुआ है, हमने small aperture approximation मतलब that is paraxial approximation को use किया है. इसका मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे जो rays consider कर रहे हैं, that is very close to the principal axis and forming very small angles. Clear? So we can write this tan alpha, sin alpha, whatever is equals to alpha tan beta, sin beta is equals to, है ना? So small beta इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि angle जो है very small है. तो alpha, beta, gamma, I and this refracted angle are very small angles. समझ में आ गया? क्योंकि हम यहाँ पे paraxial approximation use कर रहे हैं. Alright. क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि we are considering the rays which are very close to the principal axis. Let me tell you this angles, this angle I भी हम निकालना चाहते हैं, तो angle of incidence निकालना चाहते हैं and angle of refraction निकालना चाहते हैं, ठीक है? तो this angle of incidence is exterior angle for this triangle, ठीक है? इस triangle के लिए this I is exterior angle, so sum of internal angles equals to exterior angle. तो alpha plus beta equals to क्या हो जाएगा? Gamma. Alpha plus beta equals to this I, है ना? Not gamma, I. So I equals to, यदि हम refracted angle निकालना चाहते हैं तो this, so that will be equals to gamma plus R equals to beta. Gamma plus R equals to beta. तो हम R निकालना चाहते हैं तो क्या जाएगा? Beta minus gamma. इतना क्लियर? तो ये आप यूज कर सकते हो यहाँ पे. तो हमने लिख दिया यहाँ पे I equals to beta minus gamma. So as I told you, this tan alpha, this alpha, beta, gamma are three angles formed. So this alpha can be written as tan alpha. So tan alpha, tan की वैल्यू क्या होती है? Tan theta की perpendicular upon base. So this is your perpendicular MD and base is OD. This OD, है ना? So which is, I told you this D is very close to P, so we can write this OP, है ना? तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? OP, clear. So tan beta यदि हम निकालना चाहते हैं, this one. So this is normal, this is perpendicular, so perpendicular upon base. So this is MD divided by DC या फिर CD. तो CD को आप लिख सकते हो, D को रिप्लेस कर दो P से, हाँ, क्योंकि D is very close to P. And tan gamma यदि हम निकालना चाहते हैं तो gamma को देखो आप यहाँ पे, है ना? This is forming gamma angle. So this will be MD divided by this DI या फिर ID. तो D की जगह पे P लिख दो, है ना? क्योंकि D is very close to P. So this is got expression. So now putting these values, fit कर दो इन values को इसमें. तो आपको क्या मिलेगा? I equals to क्या जाएगा? I की वैल्यू यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख दो और बीटा की वैल्यू रख दो, ठीक है? तो MD divided by OP plus MD divided by CP, ये वाला, ठीक है? और आप क्या करोगे? R निकालना तो बीटा माइनस गामा, तो बीटा की वैल्यू क्या है? tan बीटा की वैल्यू क्या है? प्लस MD divided by CP और माइनस गामा MD divided by IP, रख दिया ये वैल्यूज, ठीक है? बहुत सिंपल था. अब हमको पता है कि रिफ्रैक्शन जब भी होता है तो हम क्या यूज करते हैं? कौन सा लॉ? Snell's law. So we are using Snell's law over here, that sin I divided by sin R equals to N2 divided by N1. और N2 क्या है यहाँ पे? This. N1 क्या है? This. So sin I divided by sin R equals to N2 divided by N1. So we can write this N1 sin I is equals to N2 sin R. मैंने यहाँ बताया कि sin I जो है और sin R जो है, these are very small angles because you are using paraxial approximation here. Notice मैंने इसको एक सेपरेट वीडियो में समझाया paraxial approximation क्यों यूज करते हैं. When any ray is parallel or incident with very small angle 0 to 5 डिग्री के बीच में, तो उस केस में हम यहाँ पे 0 से 5 डिग्री के बीच में, तो उस कंडीशन में हम ये चीज यूज करते हैं alpha equals to tan alpha, beta equals to tan beta. All right, very important thing to know. So you can write this M1 sin I, that's M1 I equals to N2 R. So let me write this as sin I is equals to small I and sin I equals to small r. Understood what I am saying this? And if you can see here, when you put this value, this I and R over here, then what you are getting is this sixth equation. सीधे फिट कर दो ये वैल्यूज यहाँ पे I और R की जगह. बहुत सिंपल था. अब यहाँ पे देखो MD जो है सब में कॉमन है, तो MD निकाल के बाहर कर दो. इधर से MD बाहर निकाल दो, इधर से MD बाहर निकाल दो, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल. तो आप देखो N1 divided by MD को मैंने गायब कर दिया, ठीक है? OP plus N1 divided by CP is equals to N2 divided by this CP minus
N2 डिवाइड बाय दिस IP। अब बहुत सिंपल है, आप देखिए ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म है, दोनों सिर्फ ये डिफरेंट है, लेकिन बेस क्या है, कॉमन है। इसको आप उधर ले लें और इस वाले टर्म को इधर लाएं, तो आपका सिर्फ माइनस से प्लस हो गया, और यू गॉट दिस एक्सप्रेशन। वेरी सिंपल एक्सप्रेशन, ठीक है, बहुत सिंपल था। देखो अब क्या करते हैं अपन कि इतना तो समझ आ गया सर, लेकिन इसके बाद जो ये आपने लोग ये जो आपको दिख रहे हैं, इनको कैसे अपन साइन कन्वेंशन के फॉर्म, साइन कन्वेंशन जो हमने सीखा है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप कैसे, तो हमने एक चीज बताया है दोस्तों कि जब भी आप पोल से डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट की आप देख रहे हो, तो दैट इज डिनोटेड बाय u। नाउ साइन कन्वेंशन x एक्सिस में है, पॉजिटिव x एक्सिस में, नेगेटिव x एक्सिस में, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो यहां पे आप देखिए OP जो है, OP है ना, आपका जो मैंने बताया था कि कभी भी दिस इज नेगेटिव x एक्सिस एंड दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे नेगेटिव x एक्सिस में क्या लगाएंगे, दिस इज u माइनस u जाएगा, है ना, u आ जाएगा माइनस u, और n2 डिवाइड बाय ip लिखो कहां है, ip, this is your image and distance from the pole is given by b, and here it is in positive x axis, so it will be taken as positive. And this cp, c and p, this is also a radius of curvature, so which is given by the capital R, and in the positive x axis, so put the value plus r. Clear है? तो इतना बहुत सिंपल चीज है, आपको समझना चाहिए इसको। और देखिए अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n2 डिवाइड बाय v माइनस n1 डिवाइड बाय u, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपका एक्सप्रेशन निकल गया, जिसमें आप ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का और इमेज का और रेडियस ऑफ कर्वेचर का तीनों का रिलेशन लिख पा रहे हैं, है ना। तो हम यदि एक बार हमको क्या पता करना है, यदि हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी का दिया हुआ है, किसी भी स्फेरिकल सरफेस का, और आपको ऑब्जेक्ट आप तो ऑब्जेक्ट खुद से सेट करोगे ना कि आप ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, कहां पे नहीं रखना है, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इमेज कहां बनेगी उसको डिसाइड कर सकते हो विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड वंस यू नो दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस एज वेल, क्योंकि जो भी आप मीडियम चूज कर रहे हो आपको तो पता होगा वो, है ना, क्योंकि दिस इज एयर टू ग्लास or air to water, air to liquid, whatever also. So this is a very important relation that you have got, and we have derived it for a very single surface. But in the lens we can have large surfaces, है ना, we can have combination of lenses. Okay, so let me tell you that after this we will talk about this lens, very thin lens which has two surfaces. This is what's called a single surface. Single surface का आपको relation ये मिला। यदि इसी के साथ एक और इस तरीके से दूसरा सरफेस आ जाए, तो उस केस में आपका क्या रिलेशन बनेगा उसकी हम बात करेंगे। दिस इज फॉर द सिंगल स्फेरिकल सरफेस फॉर द लेंस, है ना। तो फिर इसके बाद हम लेंस का पावर कैसे इवैल्यूएट करते हैं, है ना, किस व्यक्ति को कितना मोटा चश्मा लगेगा, किस व्यक्ति को कितना पतला चश्मा लगेगा, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द इमेज फॉर्मेशन, एंड है ना कि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को कैसी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग लेंस बनाए जाते हैं। क्लियर है? तो उस विल टॉक टू दैट। Now let's do a problem to understand this basic concept of the spherical surface, that how can we calculate our image position with the help of the formula that we have got. We have got a formula that in which that you had n2 divided by v minus n1 divided by u is equals to n2 minus n1 divided by r. Yes, so n2 divided by v minus n1 divided by u is equals to n2 minus n1 divided by r. You have got this question, and it has said that determine the position of the image. Image का position निकालनी है यदि the point of object is at a distance of 100 centimeter in front of the spherical mirror के 100 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो in front of the और उसका radius of curvature दिया है आपको, that is 25 centimeter. So and also given to you this n1 and n2, and एयर की जानते हैं आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है, दैट इज 1, एंड ग्लास का जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज ग्लास, ऑलराइट, क्योंकि आपका जो भी लेंस वगैरह बनते हैं ग्लास के बनते हैं। तो n2 इक्वल्स टू 1.5. सो व्हेन यू पुट दिस वैल्यू ऑफ n2 की वैल्यू क्या है 1.5, तो v की आपको वैल्यू निकालना है। n1 की वैल्यू क्या है आप देखिए, दैट इज 1.0 डिवाइड बाय दिस u की वैल्यू क्या है 100 के माइनस 100 ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि when you have this object distance which is along minus x negative axis,
So in that case you have this minus sign, and if you have any point after this spherical surface, that will be taken as positive because that will be in the positive x-axis. So if you have got this expression, and now you have this 1.5 minus 1.0 divided by this capital R. Capital R is 25 centimeters. Very simple. So let us solve this. So this is 1.5 divided by V. This is plus 1/100, है ना? तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसको आप माइनस करो, क्या आएगा? 0.5 ही आएगा. यस, दिस इज 0.5 एंड डिवाइड बाय दिस 25. वेरी सिंपल. हाँ, अब क्या करो, आप इसको v निकालना है तो आप इसको सॉल्व करो, इसको इधर शिफ्ट करते हैं. चलिए 1.5 ना 0.5 डिवाइड बाय 25 एंड दिस इज माइनस 100. बहुत सिंपल था. ठीक है. सो नाउ 1/v will be okay 1.5 upon v. अब इसको आप सॉल्व करिए, क्या आएगा? 100 आएगा. ठीक है. तो 5 4 20, है ना? तो दिस विल बी 2.0, है ना? माइनस 1. इतना सिंपल समझ आ रहा है? इतना कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, बहुत सिंपल सा है ना? 1.5 डिवाइड बाय v इज इक्वल्स टू दिस 1 डिवाइड बाय 100. Clear? So v is equals to 100 into 1.5, that is equals to 150. I know. So this is very simple. You have got this image, and which is in positive, है ना? Positive value आपको मिल रही है यहाँ पे, तो that means कि आपकी जो v की वैल्यू होगी that will be something here, which is यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, इसका 50 प्लस हो जाएगा इसमें ना. जैसे सपोज करें यहाँ कुछ आपको इमेज मिलेगी 150 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, है ना? सो इट इज 150 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल. वेरी सिंपल. सो आप इजीली क्या कर सकते हो, इवैल्यूएट. यदि आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताया फिर स्फेरिकल सरफेस से, तो यू कैन इजीली इवैल्यूएट दिस इमेज. दोस्तों चलिए अब लेंस को समझते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. अभी मैंने आपको स्फेरिकल एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस के कारण जो आपका रिफ्रैक्शन हो रहा था किसी भी एक पर्टिकुलर सरफेस से, एक सरफेस से, हमने अभी एक सिंगल, ये जो वन आपको दिख रहा है, एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस को हमने कंसीडर किया. एंड वी हैव नाउ कंसीडर्ड दीस टू सरफेसेस व्हिच फॉर्म द होल लेंस, है ना? एक सिंगल लेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे सबसे पहले आप कुछ बेसिक चीजें आप समझ लीजिए जिसको हम यूज करने जा रहे हैं. वी आर टॉकिंग हियर अबाउट अ वेरी थिन लेंस. यहाँ पे हम थिन लेंस की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो AB है दैट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू T, है ना? दैट इज थिकनेस ऑफ द लेंस. एंड कैसे आप डिसाइड करोगे कि आपका जो लेंस है थिन लेंस है. थिन लेंस यहाँ पे मैंने बोला है, इसका मतलब क्या है आप समझिए. अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट से आपकी इस पॉइंट A की डिस्टेंस है ना? दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. इतना तो समझ में आ गया था ना आपको, है ना? इसी को हमने एक सिंगल लेंस को दो पार्ट्स में पहले एक ये वाला सरफेस और एक दूसरा सरफेस, पहले दोनों को सरफेस को हम स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे. दोनों को ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा? वो सिंगल लेंस बन जाएगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, पहले एक सिंगल सरफेस के कारण समझेंगे और फिर उसके दूसरी सरफेस के कारण कैसा हो रहा है अपना फिनोमेना, उसको समझेंगे. देखिए यहाँ पे पहले जो पहला फिनोमेना है वो दैट इज N1 to N2, और दूसरा जो फिनोमेना है दैट इज फ्रॉम N2 to N1. क्लियर? यहाँ एयर है तो यहाँ भी एयर है, तो यहाँ पे जैसे N2 कुछ भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, तो यहाँ पे उस तरीके से आप समझते हैं. तो यहाँ पे देखिए कि जो एक इस लेंस को यदि हम एक स्फीयर्स के फॉर्म में कंसीडर करें, एक ये वाली इसके कारण एक स्फीयर बनेगा और एक इसके कारण स्फीयर बनेगा. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप जानते हैं, सेंटर से जो डिस्टेंस होती है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड इट इज हैविंग दिस पोल, है ना? पोल B है और AB A और इस पॉइंट B पे आप देख पा रहे हो दीज आर पॉइंट्स. और कुछ इस तरीके से हमने इसको सेट करना है. सपोज करिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपका O है, ऑब्जेक्ट O है, तो उस केस में ये OA is approximately equals to OP is approximately equals to OB. क्लियर? मतलब इतना थिन लेंस हम यूज कर रहे हैं कि आपको ये अप्रोक्सीमेशन यूज करना है कि OA जो है आपका वो OB के बराबर है और OP के बराबर है. क्लियर है? तो क्योंकि थिन लेंस है तो इस पॉइंट A को हम B मान सकते हैं, समझ रहे हो ना? क्योंकि इतना थिन लेंस है कि OA is equals to OB, मतलब ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स है. और इसी प्रकार से यदि इमेज आपकी सपोज करिए यहाँ पे इमेज कहीं बन रही है,
सपोज करिए, तो ये IB इज इक्वल्स टू, ये देखिए IB इज इक्वल्स टू IO इज इक्वल्स टू IA, या फिर इस तरीके से आप लिखिए IA इज इक्वल्स टू IP इज इक्वल्स टू IB। मतलब इस AB को इतना हम कम मान रहे हैं कि जो इसके I से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट A की, P की और B की I से, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ईच अदर। मतलब ये समझ लीजिए कि हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं कि अपना जो ये डिस्टेंस जो है इन A और B के इतना कम है कि जो हम डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं IA से और IP से और IB की, तो ये जनरली एक दूसरे की क्या है, लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। बहुत सिंपल सा चीज मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यदि इसी को हम जनरल एक्सप्रेशन देके यहाँ पे समझे, इसको ये जब सिंपल सा हमने यहाँ पे आपको एक सर्कल फॉर्म में समझाया कि आप कैसे इसको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, इसका R2 है, और यहाँ पे कोई नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो दैट इज R2 इज लेस देन 0 और यहाँ पे R1 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज पोल एंड दिस इज लेंस स्फेरिकल सरफेस 1, स्फेरिकल सरफेस 2, एंड आई टोल्ड यू दैट हाउ यू विल मतलब क्योंकि ये थिन लेंस है, ये इसलिए ये अप्रोक्सीमेशन को होल्ड करेगा, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? मतलब कि आपको यदि OA पता चल गया है, मतलब इसका मतलब है कि आपको OB पता चल गया है, आप एक अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज करें, ये इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखिए कि हमने जो लेंस कंसीडर किया है यहाँ पे, तो इसको यदि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, कोई पॉइंट सोर्स रखा हुआ है और इससे एक रेडिएशन, इससे रेडिएशन एमिट हो रही है, तो हमने एक कंसीडर किया है कि यहाँ पे कुछ रेज जो है, हमने एक चीज पहले बताया था कि किसी भी आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट की यदि आपको इमेज पता करनी है तो एटलीस्ट यू शुड गेट 2 रेज, है ना, जो कि एक प्रिंसिपल इस O से पास होती है और पोल से पास हो रही है, और एक पैरेलल आप बीम सपोज कर सकते हो, है ना। तो उस केस में आप जनरली दो रेज जो जहां पे कोइंसाइड करेंगे, दैट विल बी योर इमेज पॉइंट। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो एक चीज यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो हमने लेंस कंसीडर किया है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें, सिंगल, ये फर्स्ट लेंस, ये फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस एंड सेकंड स्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ पे आप देखिए जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो इसके कारण रिफ्रैक्शन हुआ, उसके कारण जो रिफ्रैक्शन के कारण हमको इमेज का मिला I1, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर विद इन दिस कहीं पे C1 यहाँ पे होगा, है ना, विद इन द मीडियम की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे जो अपने को इमेज मिल रही है, यदि सब, क्योंकि देखिए हम इस लेंस को जब यूज कर रहे हैं पूरे लेंस को, तो हमको जो इमेज मिल रही है दैट इज I, और ये I1 हमने यहाँ क्यों लिखा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस के कारण जो रिफ्रैक्शन हुआ होगा, उसके कारण हमको इमेज कहां मिलनी चाहिए थी, I1 पे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस सेकंड सरफेस योर इमेज हैज बिकम, यहां की जगह में कहां गया शिफ्ट, ये, तो मतलब यहां पे जो I1 आपको दिख रहा है दैट इज एक्टिंग एज अ इनपुट फॉर दिस सेकंड स्फेरिकल सरफेस। समझ रहे आप? तो इस सेकंड स्फेरिकल सरफेस के लिए I1 जो होगा, वर्चुअल जो इमेज आपको मिल रही है I1, दैट इज acting as an object for this second spherical surface। क्लियर? तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस देखते हैं, उस केस में जो आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज I1। तो इस केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था, N2 डिवाइड बाय इमेज क्या बन रही है, एट पॉइंट V1 पे बन रही है, माइनस N1 डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज U। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे दैट इज द नेगेटिव एक्सिस, तो N2 माइनस N1 डिवाइड बाय R1। इतना क्लियर? बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस यू गॉट दिस एक्सप्रेशन, बिकॉज योर इमेज इज पॉइंटिंग एट टुवर्ड्स I1। अब यहाँ पे जो इमेज I1 है, जो कहीं इस पॉइंट पर रही होगी, और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे दूसरा जो स्फेरिकल सरफेस है, क्योंकि ये जो I1 जो इमेज आपको दिख रही है दैट इज वर्चुअल I1 इमेज, दैट इज एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस सेकंड स्फेरिकल सरफेस। तो इस सरफेस से भी रिफ्रैक्शन होगा, तो जिसकी वजह से हमको ओरिजिनल इमेज कहां मिल रही है, I1। क्लियर? और ये I1 जो आपको दिख रहा है दैट इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस सेकंड स्फेरिकल सरफेस। इस सेकंड स्फेरिकल सरफेस के लिए I1 जो है आपका, इसके कारण जो हमको I1 मिल रहा है, इसके कारण दैट इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस सेकंड स्फेरिकल सरफेस। समझ में आ रहा है? तो जब ये इसमें इंसिडेंट होगा दूसरे स्फेरिकल सरफेस पे, तो आपको इमेज कहां मिलेगी, आपको फाइनली इमेज इस पॉइंट I पे मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ पे आप इसको एक्सप्रेशन कैसे दे सकते हो, अब यहाँ पे देखिए जो आपका पहला जो वाला था दैट इज फॉर दिस, सो N1 डिवाइड बाय V, N2 की जगह क्या जाएगा,
n1 आ जाएगा और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा v, क्योंकि इमेज यहाँ पे क्या बन रही थी, अब यहाँ पे टोटल इमेज क्या बन रही है आपकी, इमेज i बन रही है ना, समझ आ रहा है, इमेज i बन रही है हैविंग डिस्टेंस दिस v, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n1, ठीक है, तो n1 डिवाइड बाय v माइनस n2, क्योंकि इस रीजन से आपका यहाँ पे जा रहा है, क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो दैट इज n2 डिवाइड बाय दिस v1, क्योंकि v1 यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इसलिए u की जगह में हमने v1 रख दिया है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छा। कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कुछ शायद मैंने गलत लिखा है कि सही लिखा है, सही लिखा है, ऑलराइट, ओके, सो दिस n2 डिवाइड बाय v1, वेरी सिंपल। ऐसा क्यों कंसीडर किया है आपने यहाँ पे, देखिए, क्योंकि यहाँ से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है दैट इज बिफोर दिस, दैट इज बिफोर दिस स्फेरिकल सरफेस, सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस नेगेटिव साइन। इधर नहीं है, इस स्फेरिकल सरफेस इधर होता है हम पॉजिटिव लेते, लेकिन जो हमारा इनपुट यहाँ पे v1 जो काम कर रहा है, जो हमने यहाँ पे डॉट डॉट करके यहाँ पे i1 लिखा है, ये i1 कहीं इस पॉइंट पे कहीं पे होगा, जो कि एक्ट कर रहा है यहाँ पे एक इनपुट की तरह, आपको ऑब्जेक्ट की तरह, उसकी वजह से आपको यहाँ पे i इमेज मिल रही है, ठीक है। तो समवेयर i1 इज समवेयर हियर, है ना, हमने डॉटेड करके यहाँ पे शो किया है, यहाँ पे मतलब कि ये पॉइंट, ये जो i1 जो इमेज है कहीं यहाँ पे इस विद इन दिस ग्लास है, विद इन दिस लेंस किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको i इमेज दे रहा है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, समझ गए। और इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इस सरफेस के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स r2 हमने मिला, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है आपका जो ये वर्चुअल इमेज जो i1 है, दैट इज एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट, एंड दिस फाइनली दैट इमेज यू हैव गॉट दिस v। क्लियर, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस तरीके का शेप आपको मिल जाएगा, है ना, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके का शेप मिल जाएगा। तो अब ऐड कर दो, तो n1 डिवाइड बाय v, n1 डिवाइड बाय, ओके, दिस n1 डिवाइड बाय v। एक चीज देखिए यहाँ पे, एक दोनों का ऐड करोगे तो ये वाला टर्म तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो सिर्फ क्या मिलेगा आपको, n1 डिवाइड बाय v, और यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस n1 डिवाइड बाय u, क्लियर। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको भी ऐड करो आप, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि n2 माइनस n1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, r1 माइनस 1 अपॉन r2। आप इसको ऐड करके देखोगे तो आपको ये मिलेगा, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप n1 कॉमन लोगे और n1 से इधर डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, n2 डिवाइड बाय n1 माइनस n1 डिवाइड बाय n1 से n1 कैंसिल, समझ में आ रहा है कैसे, देखो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, आपने r1 यहाँ से n1 निकाला और इधर शिफ्ट किया, तो आपको n2 माइनस n1 था पहले से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n1, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपने 1 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे into 1 upon r1 minus 1 upon r2, वेरी सिंपल, ठीक है। ऑलराइट, सो फाइनली व्हाट वी हैव गॉट दिस, क्योंकि 1 upon v minus 1 upon u जो है दैट इट्स acts like focus, यहाँ पे आपको that is supposed to focus, so it is single entity, so 1 upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u, इस लेंस के कारण आपको फोकस की वैल्यू ये मिलेगी 1 upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u, and now this is called the lens formula. Students, now we will study this lens maker formula, and for common application of the lens, generally common application जो हमारा है उसकी यदि हम बात करें तो n1 जो n2 upon n1 था, यहाँ पे आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था n2 upon n1, तो n2 यहाँ पे n है और n1 जो है अपना एयर है, तो n1 एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1, so when you put this value that here you get n minus 1 and 1 upon r1 minus 1 upon r2, clear। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी that it is a lens maker formula, so let us study it. The formula indicates to the choice of r1 and r2 to obtain the desired focal length. यदि हम इस r1 और r2 के साथ गेम खेले तो we can easily change this f, है ना, क्योंकि n तो अपना फिक्स रहेगा जो हमारा रहेगा, लेकिन इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपना जो फोकल लेंथ है उसको जितना हमको जरूरत है उसके हिसाब से अपन उसको एडजस्ट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। वी कैन डिसाइड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर, है ना, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ठीक है फिक्स रहेगा, लेकिन ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यू कैन फिक्स, वी कैन एडजस्ट इट। So we can see here there are two kind of basically there are two kind of lenses.
So biconvex lens in which we have, this is biconvex lens. We have supposed this जो radius of curvature है इस फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस के कारण, तो जो पहले हम फर्स्ट सरफेस के कारण जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मान रहे थे दैट इज r1, और सेकंड सरफेस के कारण जो मान रहे थे वो r2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए फर्स्ट सरफेस के कारण जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलता है वो दैट इज पॉजिटिव r1, दैट इज पॉजिटिव r, है ना, r1 इक्वल्स टू पॉजिटिव। और इस केस में जो हम सेकंड सरफेस के लिए निकालते हैं तो वी गेट रेडियस ऑफ कर्वेचर विद इन दिस बट इट इज इन नेगेटिव साइन, ठीक है, तो -r2 मिलता है। ध्यान रखिए आप जो मैंने बताया था। तो हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि जो हमारा r1 r2 है, r1 इक्वल्स टू -r2 इक्वल्स टू r, ठीक है। तो हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं यहाँ पे, और देख पा रहे हो यहाँ पे आपको अजम्पशन जो हमने यहाँ पे फिट किया है इसको, r1 की जगह पे हमने क्या रखा है, r रखा है, और इस r2 की जगह पे -r रख सकते हैं, है ना, r2 की जगह में क्या रख सकते हैं, -r। सो यहाँ पे हमको क्या मिला, दिस इज 2/r into n-1, वेरी सिंपल। कैसे आया पता है ना आपको, माइनस प्लस हुआ, r आपका ये बेस जो है that becomes common, and 1 plus 1 that is equals to 2 divided by r into n-1. So this is 1 upon f equals to 2 divided by r n-1. Very important expression। यदि आपका f जो है, यदि n की वैल्यू ग्रेटर होगी 1 से, तो इस केस में you will get this value to be positive, है ना। और f की वैल्यू यदि पॉजिटिव मिल रही है कॉन्वेक्स लेंस से, मतलब इसका क्या है कि और फोकल लेंथ जो आपको मिल रही है, फोकस जो मिल रहा है दैट इज along the positive x axis, along the positive x axis मिल रहा है, that's why this f is greater than 0, and that means what, it is converging to a point, these parallel rays are converging to a point f, समझ रहा है, यदि f is greater than 1 है, greater than 0 है, that means this is going to converge, और now this is a very important formula, please note it, है ना। ये आप कैसे आप फोकल किसी बाइकॉन्वेक्स लेंस में आप कैसे फोकस को एडजस्ट कर सकते हो, that is depending on r and depending on n। मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, इसको अभी मैं बात करता हूँ। कॉन्केव लेंस का भी बता दूं पहले मैं आपको, सिमेट्रिक बाइकॉन्केव लेंस जो है, देखिए कॉन्केव लेंस हमने यहाँ पे यूज किया इन प्लेस ऑफ दिस टू, यहाँ पे दो सरफेसेस थे, यहाँ पे भी दो सरफेसेस हैं, ये सरफेस और एक ही सरफेस, और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस था, यहाँ पे क्या है, कॉन्केव लेंस। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे देखिएगा आप डाइवर्जिंग लेंस की तरह कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे इसके कारण फर्स्ट सरफेस के कारण जो हमको यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा समवेयर हियर, यहाँ पे हमको इस सरफेस के कारण आपने कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस को पढ़ा है, कॉन्केव सरफेस का, तो उस केस में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ इधर साइड मिलेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, सो दैट्स व्हाई इट इज -r। और इस सरफेस के कारण जो मिलेगा दैट इज somewhere here, so that's why it has a positive r value, ठीक है, क्योंकि that will be along positive x axis। So this is what we have, we can understand by seeing this diagram, ठीक है। तो हमने एक assumption लिया कि r1 जो है अपना जो इधर मिलेगा that is -r, and r2 जो इधर मिलेगा that equals to +r gives, so what it gives, putting this value of r1 and r2 with the help of this assumption that -r/2 कैसे हो जाएगा, इतना तो समझ आ गया ना। f आप निकाल रहे हो, क्योंकि f जब आपने निकाला था, यहाँ पे देखिए 1/f। अच्छा एक काम करूँ, यहाँ पे आपको फिर से एक बार लिख रहा हूँ, क्या ये 1/f तो है ही आपका n-1, 1/r1 की जगह क्या रख दोगे आप -r, r2 की जगह क्या रख दोगे r, क्लियर, यही फॉर्मूले में। तो आपको जब फाइनली एक्सप्रेशन जब सॉल्व करोगे तो आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन मिला था कॉन्केव कॉन्वेक्स केस में, सिमिलरली कॉन्केव के केस में आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे थोड़ा सा तो आपको ये मिल जाएगा, क्लियर। तो इतना समझ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो f इक्वल्स टू -r/2 डिवाइडेड बाय n-1। यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, फोकल लेंथ जो आपको मिलेगी दैट इज अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब इसका क्या है कि किसी एक पॉइंट पे आपका क्या है, ये जो कन्वर्ट हो रहा है, ये जो लाइंस निकल रही है दैट इज कन्वर्जिंग टू समवेयर पॉइंट व्हिच इज इमेजिनरी, है ना, व्हिच इज वर्चुअल फोकस, ठीक है। सो वी हैव these lines are diverging and appears to come to meet at this point, है ना। इस पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि ये लाइंस यहाँ से जनरेट हो रही है, बट इट इज नॉट सो। These lines are diverging and it appears to come from this point, clear। So
एन यदि ग्रेटर देन 1 से तो f इज ग्रेटर, यदि मॉड की वैल्यू करें मतलब कि जो एक्चुअल यदि डायरेक्शन तो है यहाँ पे, ठीक है, दिस नेगेटिव इज शोइंग द डायरेक्शन। सो यदि f जो है आपका, यदि नेगेटिव को कंसीडर करोगे, यदि आप मॉड नहीं ले रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, और यदि n ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट हैज दिस वैल्यू नेगेटिव, है ना, and it appears to come from this point, these rays are appears to come from this point, लेकिन ऐसा एक्चुअली में है नहीं, ठीक है। यहाँ से ये this is called the virtual image, virtual point, ठीक है। ऐसा पॉइंट फोकस जो वर्चुअल है जनरली एग्जिस्ट, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्लियर। सो दैट्स व्हाई इट इज एक्टिंग, बाइकॉन्केव लेंस एक्ट्स एज अ डाइवर्जिंग लेंस एंड बाइकॉन्वेक्स लेंस एक्ट्स एज अ कन्वर्जिंग लेंस, clear, because here f is greater than 0, that is f is positive, here f is less than 0 because of the negative sign, clear। यहाँ पे n का क्या रोल है, अब सपोज करिए ग्लास के लिए कंसीडर करें n goes to 1.5, यहाँ पे 1.5 इक्वल 0.5 आएगा, तो यहाँ पे इस केस में आपको जो f की वैल्यू मिलेगी दैट इज f equals to r, फॉर इसके केस में क्या होगा, कॉन्केव के केस में -r हो जाएगा, और इसके केस में क्या हो जाएगा, +r रहेगा, है ना। और यहाँ पे n equals to 2 है, तो इस केस में -r/2 हो जाएगा, कॉन्वेक्स केस में क्या हो जाएगा, +r/2 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये n का बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिख रहा है आपको, मतलब जो आपका फोकस है सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इस r के ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं कर रहा है, समझ रहे हो, इट इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, आप किस तरीके का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप चूज कर रहे हो। We have generally we have here talked about this air and this n2 equals to n, and this n2 can be anything, n की वैल्यू आपका ग्लास हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, वाटर हो सकता है, whatever, its value is also very important, ठीक है। तो इस n के चेंज होने के कारण आपका जो रिफ्रैक्टिव जो फोकस है दैट इज आल्सो गोइंग टू चेंज, ठीक है। कि आपका अभी मैं इसके बाद पावर ऑफ लेंस की बात करूंगा, तो उसमें आप अच्छे समझ पाएंगे कि कैसे ये फोकल लेंस जो आप बना रहे हो किस तरीके से रोल प्ले करता है ना। फोकस हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लेंस। लेट्स डू वन प्रॉब्लम एंड टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। सो हियर वी हैव चोजन a problem of the biconcave lens in which we have a divergence. You have seen that. A 2 cm long needle is placed erect at a distance of the 10 cm. At a distance of 10 cm, all right. It is a distance having a 10 cm. Sign convention use कर देंगे बाद में, चलिए ठीक है। In front of the biconcave lens or the focal length. Focal length कितना है इसका? That is 10 cm. All right. चलिए मतलब f भी दिया है आपको. That means f is equals to that is minus 10 centimeter, and this u is also equals to minus 10 centimeter by sign convention, because these all are lying in the negative x-axis. All right. So you know the focal length of the concave lens lies in the negative x-axis very well. ठीक है. So what determine the position and the size of the image? Position आपको निकालनी है और आपको इमेज की साइज भी पता करनी है, ठीक है। तो आप चलिए इसको सबसे पहले लेंस मेकर फॉर्मूला, जो लेंस वाला फॉर्मूला था उसको यूज करते हैं। दैट इज 1 minus 10, f की वैल्यू -10, और जो ये ऑब्जेक्ट है आपका दैट इज आल्सो, इसको इधर लाइए, प्लस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -10, ठीक है, सेंटीमीटर में है, दैट इक्वल्स टू 1/v. ऑलराइट, दिस इज v. Now if you solve it, then what will you get? That is 2 upon, क्योंकि यहाँ दोनों कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, दोनों साइड माइनस, तो माइनस भी कॉमन ले लिया था अपन ने, तो 10 और 1/2, so it is -1/5. So what we get is equals to 1/f. So f equals to minus no, this is v. So v is equals to -5. क्लियर? मतलब आपका जो इमेज इतना सेंटीमीटर, इमेज फॉर्मेशन कितने सेंटीमीटर होगा? नेगेटिव आपको दिख रहा है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में समवेयर हियर एट अ डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे चलिए, यहाँ क्योंकि डायग्राम में बन गया है तो इसको चलिए इसको थोड़ा रब कर लेते हैं और फिर इसके बाद इसमें एक प्लॉट करते हैं।
कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको? चलिए ठीक, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये at a distance of 5 centimeter, at a distance of 5 centimeter you are getting this image. और क्या पूछा है? साइज ऑफ द इमेज। आपको एक फॉर्मूला पता था, आपको एक फॉर्मूला पता है, दैट्स m is equals to मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू कितना होता है? दैट इज h डैश डिवाइड बाय h इज इक्वल्स टू क्या? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। पता है आपको इतना? ओके, सो नाउ व्हाट इज v? v आपको समझ में आ गया, -5 सेंटीमीटर। u कितना है आपका? दैट इज -10 सेंटीमीटर। सो आपका क्या करेंगे आप यहाँ पे -5 डिवाइड बाय -10, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। दैट मींस u इक्वल्स टू 0.5। मतलब आपका जो मैग्निफिकेशन क्या हुआ? दैट इज हाफ। यदि आपकी जो इसकी हाइट थी 2 सेंटीमीटर थी, यदि इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर थी, तो अब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? नाउ इट्स हाइट विल बी 0.5, हाफ हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि 2 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर आपको इमेज मिलेगी? 1 सेंटीमीटर। ये भी क्लियर हो गया साइज ऑफ द इमेज। ड्रॉ अ रे डायग्राम विद द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज भी हो गया, हमने यहाँ पे पहले से एक कॉन्केव लेंस सेट कर लिया था और 2 सेंटीमीटर का था। 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपको एक इमेज मिल रही है, उसका मैग्निफिकेशन कितना है? 0.5 है, मतलब हाफ हो जा रही है उसकी इमेज, है ना? तो यहाँ पे आपका आ गया, ये इमेज हो गई। क्लियर है? और इरेक्ट इमेज होगी क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है ना। सो वेरी सिंपल एंड नाउ दिस इज व्हाट वी वांटेड। आपको पता चल गया अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर्स ऑफ एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। इमेज डिस्टेंस आपने लिख लिया है और शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। यस, इमेज फॉर्मेशन हो रही है इस पॉइंट। यू नो वेरी वेल दिस एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। कोई भी दो रे का इंटरसेक्शन आपको इमेज बता देगा कहां पे। क्लियर? कोई भी दो मतलब कौन सी रे? एक ये वाली जो सेंटर मतलब पोल से पास हो रही है, और एक ये वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, आपको ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस कैन टेल यू, आपको देख रहे हो रिफ्रैक्शन के बाद इस तरीके से यहां से कहीं पे पास होगी, तो इट इज फॉर्मिंग इमेज ओवर हियर। ठीक है, तो दो रेज आपकी सफिशिएंट है इमेज डिसाइड करने के लिए। दैट्स ऑल।